Hello, dear students. I welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also, you all are taking care of cleanliness around you. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट 1 प्रीवियस डे. तो ये जो होगा, कल मैंने बताए थे आप लोगों को एसर्टिव सेंटेंसेस में, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वॉइस ऑफ एसर्टिव, डिक्लेरेटिव और एनी सिंपल सेंटेंस. But today we are going to discuss about what? We are going to discuss how to change voice of negative sentences. Okay? So I have told you in previous lectures कि हम लोग assertive sentence यानी declarative sentence की voice कैसे change करेंगे. But today we are going to discuss what? We are going to discuss about negative sentences. Okay? So how we are going to change voice of negative sentences. The first thing what you have to keep in your mind is negative sentences will always remain negative whenever you are going to change active sentences into passive. यानी जब भी आप भी एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है अगर, तो नेगेटिव will always remain negative, but there will be following a ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट फॉर्मेट. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, क्या आई हैव टोल्ड यू अबाउट एक्टिव्स रूल. एक्टिव का जो रूल बताया था और पैसिव का रूल बताया था. तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि एक्टिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और वर्ब भी कौन से टाइप्स की? Verb will also be two types of what? First one is main verb, second one is helping verb. So this will be the format of active sentence. Simply any simple sentence which have subject first and then verbs and then object is active sentence. And passive will also always be like object, start from object plus verb, helping verb plus main verb, and main verb be always third form of main verb, then by and then subject. Okay, तो सिंपली एज कंक्लूजन अगर हम बोलें कि कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, तो एक्टिव में जो है सब्जेक्ट डूअर होगा एंड पैसिव में जो है वो ऑब्जेक्ट डूअर होगा. ओके, चलिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव taken some sentences to explain you this. They have not stolen my pen. Okay, this is an active form of sentence. They have not stolen my pen. The answer will be my pen. So I have told you about the format that they जो है वो subject है and have is an helping verb. Not will जो है वो तो है ही क्योंकि negative sentence है. Second, stolen is a main verb and my pen is an object. तो we will take here my pen as a subject in passive voice. तो passive voice में हम क्या करेंगे, my pen को as a subject ले लेंगे, my pen. And as I have told you earlier कि जब भी has, have, had आता है, if there is has, have, had in a sentence or will, shall, have in a sentence, you will always use has, have, had, will, shall, have plus been and verbs third form. यानी if, तो simply if there is a sentence in active of perfect, मतलब perfect का अगर sentence है, either it is present perfect or past perfect या फिर end में future perfect. तो if there is sentence of perfect, there will always be use of been. वहाँ पर यूज़ किसका होगा, बीन का यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने जो दूसरा लिया है, हैव अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल. दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन, यानी एनी साइन इज ऑब्जेक्ट हेयर, दे इज सब्जेक्ट हेयर, मस्ट नॉट हैव इज ऑल हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड मॉडल. तो एनी साइन इज ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेंटेंस, हम ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लेंगे इन पैसिव. तो एनी साइन, और मैंने ये कुछ कल भी बताया था कि मस्ट नॉट का जब भी यूज़ आ रहा है, शैल नॉट का, शुड का यूज़ आ रहा है, तो मस्ट के साथ में बीन का यूज़ हो जाएगा, राइट. तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट, सिंपली
Nobody. Now have a look on next example, which is nobody has done work. Here we will see that nobody is a subject, has is an helping verb, done is main verb, and homework is object. So in passive voice we will what we will do, we will take homework as a subject in passive voice. So हमने यहाँ पर लिया ही है होमवर्क को एज अ सब्जेक्ट, हैज़ नॉट इज क्योंकि नॉट जो है वो क्या है, हमने पहले ही बताया कि जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव विल रिमेन नेगेटिव, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हैज़ नॉट बीन यूज हुआ. बीन का मैंने बताया ही था, इफ देयर इज हैज़, हैव बीन, हैड और विल, शैल हैव बीन. तो सिंपली अगर दिमाग में रखा जाए तो एक कंसेप्ट रखिए, इफ देयर इज अ सेंटेंस ऑफ परफेक्ट, आइदर इट इज ऑफ प्रेजेंट, ऑफ पास्ट, या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है, यू विल ऑलवेज यूज बीन इन पैसिव वॉइस विद दैट पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव सेंटेंस. ओके, now have a look on next slide. I hope that you cleared about the negative sentences, active passive voice. चलिए अब हम देखते हैं ये जो टेबल मैंने लगाई है ये, हाँ, दिस इज एक्चुअली अ कंक्लूजन ऑफ द एंटायर सेशन. द टेबल नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ नोबडी हैज़ डन होमवर्क, है ना. ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, सिंपली नोबडी इज अ सब्जेक्ट, हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, डन इज मेन वर्ब एंड होमवर्क इज एन, होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पैसिव जब सेंटेंस किसी भी एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. तो होमवर्क, फिर होमवर्क आगे आ गया, फिर हमने कहा हैज़ नॉट, तो हैज़ क्योंकि नोबडी लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ नॉट हमने यूज़ किया जस्ट टू शो दैट दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट नेगेटिव सेंटेंस रिमेन नेगेटिव, इसी चीज़ को फॉलो किया. तो होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन. बीन कैसे आया, इफ देर इज, always keep this thing in your mind, if there is has, have, be, has, have, had, will, shall, have, in active sentence we will always use been with that particular helping verb. उस particular helping verb के साथ में we will use been. हम क्या यूज़ करेंगे, been. उसी चीज़ को फॉलो करते हुए has के साथ में been आया. Now have a look on this table. ये जो टेबल है ये जो है कंक्लूजन है. दिस इज एक्चुअली अ कंक्लूडरी टेबल ऑफ एंटायर सेशन. फ्रॉम द डे वन आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट, आई एम टेलिंग यू अबाउट सेवरल रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. तो पहले हमने बताया था कि एक्टिव सेंटेंसेस को भी पहचानने के लिए what you have to do is you have to go through the previous lectures I recorded of tense सेंटेंसेस. ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा. तो ये जो है हमने पहले ही बताया कि टेंस बेस्ड होते हैं. टेंस अगर आपको आते हैं तब आप एक्टिव सेंटेंस पहचान पाओगे कि दिस इज एक्टिव सेंटेंस. अब टेंस ही नहीं आते तो फिर व्हाट आई कैन डू, आई कांट डू एनीथिंग. तो टेंस को पहले पढ़िए. यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स आई रिकॉर्डेड. कौन से वाले हैं वो, टेंस के हो गए, सेंटेंस के हो गए. फिर हम आते हैं, तो हमने कहा कि ये सिंपल प्रेजेंट का है. जस्ट टू मेमोराइज इट, हाउ वी कैन कंक्लूड द एंटायर रूल्स एंड रूल्स एंड चेंजेस. जब भी हम लोग एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, देयर आर सम रूल्स एंड चेंजेस, तो हमको वो बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा. हाउ, सो देखिए कैसे होगा. तो सिंपली इफ देयर इज verbs first form in active sentence we will always use is am are as an helping verb in passive and verbs third form. तो ये चीज़ तो एकदम आसान है लर्न करने में कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए V3 फॉर्म का यूज़ होगा ही होगा. ठीक है. अब देखिए दूसरा जो हमको समझना है वो क्या है, मैंने बता दिया. सिंपल प्रेजेंट का है या वो पास्ट प्रेजेंट, आई मीन सिंपल पास्ट का है. इफ़ द सेंटेंस बिलोंग्स टू, सॉरी, इफ़ द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट. अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं, सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है तो वी विल यूज इज एम आर विद V3 फॉर्म. और अगर सिंपल पास्ट का है तो वी विल यूज वॉज, वर एंड V3 फॉर्म. यहाँ पर वो गिवन नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. तो अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, ओके, इफ देर इज वर्ब्स सेकेंड फॉर्म इन एक्टिव सेंटेंस, तो सिंपल पास्ट का है, वी विल यूज वॉज, वर एज एन हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, वॉज, वर एज एन हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, एंड अलॉन्ग विद इट विल यूज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो क्या चीज़ कंक्लूजन में आई, इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल यूज इज एम आर एंड V3 फॉर्म. Secondly, if the sentence belongs to simple past
तो वी विल यूज was were and V3 form. ओके, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. तो हैज हैव प्लस V3. इफ देयर इज हैज हैव और V3 फॉर्म इन एक्टिव सेंटेंस वी विल यूज हैज हैव, एंड अलोंग विद हैज हैव वी विल यूज बीन, जो कि हमने अभी प्रीवियस एक एग्जाम्पल जो किया था उसमें ये वाला जो थर्ड वाला है रूल वो हमने डिस्कस किया था और प्रैक्टिकली किया भी है. फिर आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में. तो इफ यू गेट एनी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट. प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस नहीं चेंज होगा क्योंकि वो पहले से ही एक्टिव जो है वो पैसिव में होता है. एक्टिव वॉइस वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता, नॉट कॉमनली यूज्ड. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ये जो मैंने सिंपल पास्ट का आपको पहले ही बता दिया. सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो अगर है इफ देयर इज वर्ब second form of verb in active sentence we will use what we will use was verb plus V3 form. आया समझ में, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है एक एग्जांपल के साथ में कि सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट का है तो we will use was verb plus V3 form of the verb in passive sentence. Now just get to the next topic and next rule which is पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब प्लस VING. अब देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का है यानी वॉज वर है तो हम वॉज वर ही यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ में जो सिंपली क्या हो जाएगी बीइंग ऐड हो जाएगा एज अ पैसिव बी फॉर्म. फिर आते हैं हम पास्ट परफेक्ट में. तो हैड और V3 है अगर तो हैड और बीन यूज हो जाएगा. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. फिर पास्ट परफेक्ट का है तो नॉट कॉमनली यूज्ड. ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर वाले में. तो फ्यूचर में भी देखिए क्या दिया हुआ है. सिंपल फ्यूचर का है तो बी. तो सिंपली ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कि इफ देयर इज एनी मॉडल प्रेजेंट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और विल, तो वी विल यूज in passive voice what will we do, we will use be along with that particular model. यानी उस particular model के साथ में हम be का यूज़ करेंगे and V3 फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी. फिर हम लोग देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. if there is will shall be है ना, will shall be तो इसका भी वो पैसिव फॉर्म नहीं चेंज होता. ये भी आपको याद रखना होगा. 3 जो हैं उनका पैसिव फॉर्म नहीं, 4 का नहीं चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल कि मतलब इन शॉर्ट फ्यूचर परफेक्ट का हम बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इनका सिंपली चेंज नहीं होता है. और अगर हम बात करें तो कंक्लूजन ये था, क्या था कि एक्चुअली ये जो भी हम लोगों ने परफेक्ट के टू अंडरस्टैंड द रूल वी विल गो थ्रू एन एग्जाम्पल. ये जो नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है देखिए, ही विल हैव डन होमवर्क. उसका जो आंसर है पैसिव सेंटेंस वो है होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम. तो ऐसे ही हमने किया. होमवर्क जो है वो सेंटेंस में क्या था, होमवर्क वॉज सब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ ऑब्जेक्ट था जिसको हमने एज अ सब्जेक्ट लिया पैसिव में. विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले से ही थी. फिर हमने किया है बीन ऐड इसमें, क्योंकि एज पर रूल क्या होता है, एज पर रूल विल शैल हैव के साथ में बीन का यूज़ होता है और बाय हिम. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड विच इज look at these examples. She will write poems beautifully and poem will be beautifully written by her. तो beautifully adverb goes just before verb 3. यानी हमेशा ऐसे सेंटेंस नहीं होगा. अगर मैंने इसका आंसर लिखा होता poems will be written by her beautifully, it will be wrong. क्यों? क्योंकि हमेशा जब एडवर्ब लगा हुआ है यानी ly, मैंने बताया ly व्हाट इज मतलब एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब इज सिंपली अ वर्ड विच इज़ यूज टू डिफाइन वर्ब. तो वर्ब यहाँ पर क्या है, राइट. और राइट जो है वो किस तरीके से लिख रही है, ब्यूटीफुली लिख रही है ना. तो ब्यूटीफुली जो है वो सिंपली हम लोग को कई बार ऐसे भी शॉर्टकट में बताया जाता है कि ly फॉर्म जो होते हैं वो एडवर्ब्स के होते हैं. तो ly जो लिखा हुआ है कहीं पर ly मिलता है ज़्यादातर तो वो एडवर्ब होगा. ये भी एडवर्ब है. तो पोएम्स विल बी ब्यूटीफुली रिटन बाय हर. लेकिन ब्यूटीफुली इफ इन केस यू हैव एडवर्ब इन एनी एक्टिव सेंटेंस वी विल ऑलवेज व्हाट वी विल डू कि हमेशा जो वो एडवर्ब है विल ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर
V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो वर्ब मेन वर्ब है उसके पहले प्लेस किया जाएगा किसको, एडवर्ब को। चलिए यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, ही हैंडल्ड द लोड केयरफुली, द लोड वॉज केयरफुली हैंडल्ड बाय हिम। अगर मैं इसको लिखती द लोड वॉज हैंडल्ड बाय हिम केयरफुली, इट विल बी रॉन्ग, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है केयरफुली बाद में। वी कैन नॉट फॉलो द सेम मैनर इन पैसिव सेंटेंसेस, वी ऑलवेज पुट केयरफुली और एडवर्ब फॉर्म आफ्टर बिफोर V3 form of the verb in passive sentences. Okay, now have a look on next slide. Passive form of yes or no question. Whenever you are going through any question which is from interrogative sentence, यानी कौन सा वो interrogative class से है, तो what will you do? दो तरीके के interrogative sentences होते हैं. First one is modal auxiliary, जो होते हैं modal से start होते हैं. For example, can, may, माइट, शुड, इन सब से स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने लिखा कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो दिस इज कौन सा वाला, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो मॉडल से स्टार्ट होता है. फिर दूसरा हु आर यू, अगर मैं लिखती हूँ तो हु आर यू जो है वो क्या हो जाएगा, हु आर यू क्या हो जाएगा, हु आर यू बन जाएगा WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, ये हम लोग कौन सा वाला देख रहे हैं, येस नो क्वेश्चन वाला. कैन यू एंड स्पीक, मतलब कैन यू, मे, माइट, इन सब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस. तो पूछा है कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें हमारा जो सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो इसका हमारा चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म में पैसिव सेंटेंस. सो हैव अ लुक ऑन एन एग्जांपल. कैन यू स्पीक इंग्लिश को हम लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट किया. कैन और सब्जेक्ट जो है इसमें हमारा यू है, स्पीक जो है वो वर्ब है, इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट. तो हेयर इन पैसिव सेंटेंसेस वी विल पुट इंग्लिश एज अ ऑब्जेक्ट. तो कैन हम वैसे ही यूज़ करेंगे, मॉडल वैसा का वैसा रहेगा, और जो ऊपर सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में लेके आएंगे. तो इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू ऐसा बन जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, और आगे भी देखिए फॉर द क्लियर एंड फॉर मोर क्लियरेशन we also have to study and go through the next topics, next examples. जैसे कि has he helped them है, तो have they been helped by him, ये कैसे हुआ. them को हमने ऐसा सब्जेक्ट लिया, तो them के मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस हमने प्रीवियस यानी पार्ट 1 में ही डिस्कस किए थे. तो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या हुआ, दे का them का दे हो गया, सॉरी दे जो है वो सब्जेक्टिव केस हो गया them का. तो दैम का हमने सब्जेक्टिव केस दे यहाँ पर यूज़ किया. हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ बीन दी हुई थी, तो दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारा हैव आएगा, हैव का यूज़ किया. फिर हैज़ हैव जब भी होगा तो मैंने बताया कि बीन यूज़ होता है, पहले ही हमने डिस्कस किया. तो हैव दे बीन हो गया. V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हेल्प्ड और बाय और हिम हो गया. फिर इसी तरीके से बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं इस मेन कंसेप्ट को. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं येस नो के. आर दे प्लांटिंग ट्रीज, आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, डिड दे टेल एनीथिंग, वॉज एनीथिंग टोल्ड. यानी एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो टेंस का कन्वर्जन है, यानी जो भी एडिशनल वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एसर्टिव और डिक्लेरेटिव के फॉर्म में ही रहेंगे. ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं थोड़ा थोड़ा सा चेंज होंगी. जो हम लोगों ने देख लिया है कि हेल्पिंग वर्ब की प्लेस में ही रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बस अपना प्लेस चेंज करेंगे. फिर अपन आते हैं पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस. ओके, आर दे प्लानिंग ट्रीज, तो आर दे प्लानिंग ट्रीज जो है इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे जो है वो सब्जेक्ट है, प्लांटिंग वर्ब है और ट्रीज जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो हमने क्या किया, ट्रीज को एज अ सब्जेक्ट लिया इन पैसिव वॉइस, तो ट्रीज. फिर हमारा जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये देखा था कि व्हेन देयर इज ING फॉर्म ऑफ एनी वर्ब वी विल यूज बीइंग एज एडिशनल, है ना. एडिशनल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बीइंग. तो जब हम बीइंग यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ये, तो ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है. अब जैसे येस नो क्वेश्चंस में मैंने पहले ही बताया कि आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, दे जो है वो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद प्लांटिंग जो है वो क्या है, वर्ब है, और ट्रीज जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो ट्रीज को हमने एज इन सब्जेक्ट इन पैसिव यूज़ किया. आर जो है अपनी प्लेस नहीं चेंज करेगा बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब, तो आर ही रहेगा. और उसके बाद ट्री जो है वो सब्जेक्ट आया, एज अ सब्जेक्ट आया. उसके बाद हमने क्या ऐड किया, बीइंग, क्योंकि एज पर अवर रूल व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर और ING फॉर्म ऑफ वर्ब होगी सेंटेंस में, व्हाट विल वी डू,
वी विल यूज़ बीइंग इन एडिशनल, उसमें हम बीइंग यूज़ करेंगे इन पैसिव सेंटेंसेस। फिर डिड दे टेल यू, वर यू टोल्ड, है ना, तो डिड दे टेल यू, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट, टेल इज वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट। तो हेयर व्हाट वी डू इज, व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पर हम करेंगे यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा इन पैसिव सेंटेंसेस यहाँ पर, और हेल्पिंग वर्ब विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो वर्ब वर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो वी की थर्ड फॉर्म है, वी की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने बताया था वेन एवर देयर विल बी वी सेकेंड फॉर्म ऑफ दी, मतलब वर्ब की second form, if there is second form of verb in active voice, what we will have to do is कि जो भी हमारा अगर V2 फॉर्म में दिया हुआ है एक्टिव सेंटेंस, तो हम was verb का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, यानी in passive sentences we will use was and verb, along with it we will use V3 form of the verb। ठीक है, चलिए now have a look on next slide, also go through the following examples। who opened the door, who was the door opened, by whom was the door opened। तो दो तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए passive of who questions now। so this is another topic, another way of changing active into passive sentences। who opened the door, तो इसमें हम सबसे पहले ये समझ लें वर्ब कहाँ पर है और सब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ओपेंड जो है वो वर्ब है, द डोर इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, द डोर को हमने एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंसेस लिया, तो हु हो गया, और जो भी हमारा वी की सेकेंड फॉर्म थी, क्योंकि ये तो आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, अगेन आई एम गोइंग टू टेल दिस कि वी की सेकेंड फॉर्म कहीं पर भी मिलती है, यू हैव टू यूज was were in passive and V3 form of verb। okay, next by whom was the door opened, ये हमने दो तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। okay, ये नीचे जो एग्जाम्पल है वो तो दिया ही हुआ है, along with it I have also added rule of these kind of sentences, how to translate it। इसके जो मैंने रूल्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड किए हैं। चलिए, so next and probably भी last देखते हैं कि imperative sentences में हम कैसे करेंगे। imperative sentences में if you are not aware of imperative sentences, यानी कि imperative sentences ही अगर नहीं मालूम है, what you have to do is आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे previous lectures देखने के लिए। तो you have to attend my previous lectures regarding टेंस एंड सेंटेंसेस। तो उसमें आपको सेंटेंसेस में मैंने बहुत ही ईजिली बताया कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अभी सिंपली फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस सिंपली मैंने बताया था सो का याद रखिए। सो का मीन्स इफ देयर इज सजेशन, इफ देयर इज ऑर्डर, इफ देयर इज कमांड एंड इफ देयर इज एडवाइस इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस विल बिलोंग टू विच क्लास, द सेंटेंस विल बिलोंग टू इम्परेटिव क्लास। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट हिम ओपन द डोर। तो अभी जो है ओपन द डोर, कभी भी अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं तो यू हैव टू यूज लेट इन पैसिव। पैसिव में लेट का यूज करना है। ठीक है, कैसे, देखिए इफ आई से शट योर माउथ, शट योर माउथ, this is active sentence। so in passive what we will do, in passive we will use let। सबसे पहले let का यूज़ होगा, उसके बाद object का यूज़ होगा, फिर होगा be and फिर V3 form of verb। इसमें पहले हम verb देख लेते हैं। shut is verb, your is subject and mouth is an object। तो हम इसमें क्या करेंगे, let your लिखा हुआ है इसलिए let your mouth be shut। okay, so this will be the answer of this sentence। और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखे हैं, open the door, let the door be opened, let him open the door, या फिर दूसरा अगर मैं बोलूँ get out, let be out। तो ये सेंटेंसेस हैं जो पैसिव में चेंज होंगे।
फिर हम देखते हैं वॉइस चेंज ऑफ सम, वॉइस चेंज के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो मैंने अटैच किए हैं. दिस इज लास्ट स्लाइड प्रोबेबली. तो डिड यू टीच अस, वर वी टॉट बाय यू. तो वर वी टॉट बाय यू, शी हैज़ टू प्रिपेयर फूड, फूड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर. Who told you about the incidents? इसमें भी देखिए the accident. तो accident is an object in a sentence and we will use it as a subject in passive. तो by whom जो है वो additional रहेगी because it is helping verb. तो जैसे कि अभी मैंने previously बता दिया कि helping verb will remain same and in the starting you have to use helping verb, क्योंकि अगर वो नहीं यूज़ करेंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा. ठीक है. तो हु टोल्ड यू अबाउट दैट एक्सीडेंट, तो बाय हुम वर यू टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट विल बी द आंसर. पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द जंगल, तो जंगल इज एन ऑब्जेक्ट, आर डिस्ट्रॉइंग इज वर्ब एंड पीपल इज सब्जेक्ट. हियर व्हाट विल वी डू, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द जंगल विल बी ऑब्जेक्ट. द जंगल को हमने सब्जेक्ट बनाया. इज बीइंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. डिस्ट्रॉयड भी हेल्पिंग वर्ब है. तो द जंगल इज बीइंग डिस्ट्रॉयड. अब पीपल जो है वहाँ क्यों मेंशन नहीं हुआ बाय द पीपल या बाय पीपल, क्योंकि मैंने पहले ही पार्ट में बताया था इफ़ देयर इज प्लूरल सब्जेक्ट और देयर इज अननोन सब्जेक्ट. अगर कोई अननोन सब्जेक्ट है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी विल नॉट अलाउ टू यूज़ बाय एंड ऑब्जेक्ट, है ना. यहाँ पर हम फिर सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे और बाय नहीं यूज़ करेंगे अगर हमारा सेंटेंस कहाँ से है, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है और अननोन. ओके. So guys, I hope that you enjoyed the session very much. I hope also that you all are taking care of your health. Also, you are taking care of cleanliness around you. Good luck students, study hard and वर्क वेल. अभी एक चीज़ और, इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर कॉपी चेकिंग जो डाउट क्लासेस उसमें मैं करूँगी. और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम इन मी इन डिजिटल क्लासरूम. You can come also message me personally if you have any doubt or any issue regarding the session.